सो नेमार इज इन बार्सिलोना राइट नाउ एंड नेमार के साथ ही साथ आते आते बहुत सारे रूमर्स भी swirling कर गए कि नेमार इज वांटिंग अ वे आउट एंड नेमार इज लिंक्ड विद बार्सिलोना येट अगेन बिकॉज हर साल ये होता है, ये होना ही है. नेमार इज नॉट कंफर्टेबल देयर एट PSG एंड ऑब्वियसली सो कोई भी एक प्लेयर राइट नाउ एट PSG won't be comfortable because जहां तक है इंटरनल न्यूज है, लियोनार्डो एंड नासर अल खलीफी आर प्लानिंग अ होल चॉप आउट, होल एक स्क्वाड रिवॉम्प ऑफ PSG. यहाँ पे काफी सारे उनके प्लेयर्स हैं who are put on transfers और yet if not even put on transfers they might be sold अगर एक ऑफर आता है. So आज की वीडियो में we gonna talk about the possibility of Neymar to Barcelona, the possibility of Lionel Messi to Barcelona as well. We'll talk about Haaland यहाँ पे. We'll take a look at Lewandowski, साला बार्सिलोना का CVC डील जो कि ला लीगा के साथ होने वाला है, the Spotify deal and a lot of things are to be talked about. So आज की वीडियो में we will take a look at that. But before मेरे भाई लोग, let me tell you that this video is sponsored by OneFootball application. It's my go-to place whenever I want to do any kind of research, specifically based upon the transfer because there are so many detailed articles about your club, about the league that you are interested in, and they are so much detailed. And I want you guys to go and check OneFootball application by scanning this QR code right over here, or you can go down into my description to download OneFootball to stay in touch with the latest updates in football, to understand the fixtures about your club, about the latest news surrounding your club. They are over there. So what are you waiting for? Download OneFootball application and come back to this video right now. सबसे पहले तो let's take a look at Neymar. Alright, ठीक है. नेमार का जो करंट सिनेरियो है एट PSG, he doesn't feel at home. Yes, he doesn't. ठीक है. मेसी हैज कम इन, ही वॉज देयर, थोड़ा सा एक फ्रेंडली माहौल बनाना था वहाँ पे नासर अल खलीफी को, तो उसने उसके बेस्ट फ्रेंड को ला दिया, है ना. दिस वुड मेक मेसी हैप्पी एंड दिस वुड ऑल्सो मेक नेमार हैप्पी. बट नेमार 30 ईयर्स ओल्ड हो चुका है एंड नेमार इज ऑल्सो टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट एज वेल. अभी भी साल है, बट देन अगेन वी हैव सीन कि नेमार हैज पुल्ड दिस ऑफ पहले भी, है ना. बट राइट नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन इनटू हिज हेड, एक बार्सिलोना फैन के पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए तो would it be wise to get Neymar who is 30 now? भाई मेरे हिसाब से अभी we have got Fati, we have got Ferran Torres, we have got even Adama Traore जिसकी मुझे लगता है डील परमानेंट कर लेंगे. Getting Neymar won't be the worst thing, बट एक बात है जो आपको जानी होगी कि यार नेमार बार्सिलोना वापस आने के लिए it won't be a free transfer. हमें कोई ना कोई वेज, कोई फी तो देनी होगी यार. नेमार तो अब भाई फ्री ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है, he is not towards the end of his contract right now this year. तो विल बार्सिलोना गो फॉर हिम, क्या फीजिबल होगा ना. एक और यहाँ पे छोटा सा डाउट है अबाउट डेम्बेले एज वेल. विल डेम्बेले वांट टू स्टे, विल डेम्बेले वांट टू लीव, वी डोंट नो अबाउट दैट. वुड यू वांट टू कीप डेम्बेले? ऑलराइट, डेम्बेले की परफॉर्मेंस ठीक रही है लेटली, या वी ऑल आर थिंकिंग कि डेम्बेले को हम रिन्यू करा दे. बट मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि आई डू नॉट ट्रस्ट डेम्बेलेज जजमेंट. बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन परफॉर्मेंस उसकी रहती है. सो इट वुड बी बेटर इफ डेम्बेले लेफ्ट. And now who is going to be the backup? Everybody would ask the question about that, right? So यहाँ पे बैकअप के लिए I wanna go for that Lionel Messi वाला thing, because जैसे कि जेरार्ड रोमेरो ने बताया, he informed that जॉर्ज मेसी, जो कि मेसी के फादर हैं एंड उसके एजेंट भी हैं, he wants Messi to return to Barcelona. सबको पता है कि मेसी loves Barcelona. He has been there since he started to play football at the age of 13. At Barcelona, he was over there, he came through the ranks of La Masia, he has played with great players like Xavi, Iniesta, वो उनके साथ ही ढला है यार. So whatever Xavi and Iniesta had to do, it came कहीं ना कहीं into Messi as well. It reflects through Leo Messi, the ability to pass, the ability to dribble, same like Iniesta, the ability to find space, same like Xavi Hernandez, the ability to find that through ball, same like Busquets. तो Messi has been developed into that system. It is his home. And obviously PSG पे he is suffering या struggling because more or less अगर तुम देखोगे तो he is not wanting to score the goals. At Barcelona he was the guy who had to score the goals. पिछला सीजन तुम्हें कुमान का याद होगा यार, कितना खराब सीजन था, बट स्टिल लियो मेसी मैनेज्ड टू स्कोर मोर देन 20 गोल्स because he was the guy to do the job. कोई और बंदा था नहीं up top who would have scored those goals. So Messi was the creator and also was the finisher. But at PSG he has realized कि he don't need to do that anymore. कई बार Messi has said this himself that he finds himself into that playmaking role. He wants to be a playmaker and obviously goals cut होंगे. Messi likes assists more than goals.
And at Barcelona, he has been scoring a ton of goals, mere bhai. But right now, what we are expecting out of Messi are those same amount of goals. एक बंदा जो कि 91 calendar goals मार सकता है, he is not able to score and he is not able to put up the numbers. We will be frustrated. The fans are frustrated. But look at what Leo Messi is doing. कहीं ना कहीं it is adaptation as well. He is adapting himself to a role जिसमें कि benefit होगा ultimately यहाँ पे other strikers को, इस केस में अम्बापे को, इस केस में PSG के attackers को. But will this be the best moment to get Leo Messi back at Barca? I would say yes, मेरे भाई, because even at Barca he would understand that role better. Because अगर तुम बारसा पे देखोगे तो क्या कमी है लियो मेसी की? यस, ऑब्वियसली यू सी कि एक मेसी वाला स्पार्क बचता है हमें. इफ ही इज देयर इन द टीम देयर वुड बी समथिंग डिफरेंट. और ऑब्वियसली वी वुड वांट मेसी टू रिटायर एट बार्सिलोना. ही इज 35 इयर्स ऑफ एज, राइट? तो मे बी इफ ही कम्स टू बार्सिलोना, भाई मुझे जहां तक लगता है ना, पता नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, बार्सिलोना वुड वांट टू गो फॉर मेसी. सच में मुझे ऐसा फील होता है कि इफ इस सीजन के एंड के बाद भी किसी न किसी तरीके से बार्सा वुड वांट एंड ट्राई टू गेट लियो मेसी बैक, बिकॉज दे ट्राइड फॉर नेमार, दे ट्राइड फॉर हिम बट दे फेल्ड. पीएसजी ने मना कर दिया. आई थिंक दे वुड आल्सो वांट टू ट्राई फॉर लियो मेसी एज वेल, बट इट्स नियरली इम्पॉसिबल. फैब्रिज़ियो रोमानो ने कहा साफ साफ, आई डू नॉट सी लियो मेसी लीविंग पीएसजी दिस ईयर, बट लेट्स सी. बट वो जो है ना यार, वो जो फैब्रिज़ियो के स्टेटमेंट में जो बट है ना यार, वो बहुत ही बड़ा बट है यार. आई डू नॉट नो व्हाट विल हैपन. तो मैं एक ऑनेस्ट एक फैन के तरीके से बार्सिलोना के या मेसी फैन तरीके से, इफ आई सी दिस season of Leo Messi at PSG, obviously which is not a successful one, this was just a phase where he had to get out, he was forced out, he didn't select this move. It would be great if किसी तरीके से बार्सा pull that off. And कैसे pull off करे, कैसे करे पुल ऑफ? यहां पे आती है बार्सिलोना की सीवीसी डील्स, द स्पॉन्सरशिप, द सेल ऑफ बार्सा स्टूडियोज विच दे आर वर्किंग अपॉन. सबसे पहले बार्सा की सीवीसी डील है जो कि बार्सा ला लीगा से अग्री करना चाह रही है, जिसमें कि दे विल गेट अराउंड 300 मिलियन यूरोस एंड 50 ईयर्स की ये डील होगी. तो पहले बार्सा ने इसको डिसएग्रीमेंट में रखा था, दे वरंट गोइंग विद दिस बिकॉज काफी सारे क्लॉजेस थे. बट राइट नाउ दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू डील जिसमें कि दे विल हैव देयर राइट्स, बट सीवीसी डील भी वो साइन करेंगे. अब वो बैक एंड पे क्या हो रहा है, वील फाइंड मोर अबाउट दैट लेटर ऑन. साथ ही साथ बार्सा इज वर्किंग टू मेक द सेल ऑफ बार्सा स्टूडियोज, जिसके लिए उसको अराउंड 500 मिलियन यूरोज मिलेगा. ऑल्सो स्पॉटिफाई की डील हो रही है जिसमें कि दे विल अर्न अराउंड 70 मिलियन यूरोज पर ईयर. तो बार्सिलोना का फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है ना, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा. ऑब्वियसली मेसी को एक सीजन के बाद पीएसजी से लाने में काफी ज्यादा पैसा लगेगा, बीट हालैंड एज वेल, पैसा तो लगेगा यार. बट एक बात बताओ, वुड यू वांट टू हैव हालैंड इन दिस टीम और वुड यू वांट टू सी मेसी इन दिस टीम? अगर मैं दिमाग खोल के अपना सोचूं, हाँ, it is a very difficult question. Haaland will give us the next 10 years, but with Messi, we'll have Messi. You know, this guy will always perform. Do we absolutely need Haaland? I have said this, and I know, and I have said this, that yes, this is the time for us to sign a potential Ballon d'Or winner. But mere bhai, wait a minute over there. Stay back. When it is compared to Lionel Messi, things change. I would rather want Barca to go with Messi and improve their defense, their midfield, than get just Erling Haaland. Because ऑब्वियसली मेसी के लिए आपको उतना स्पेंड नहीं करना पड़ेगा जितना आपको अर्लिंग हालैंड के लिए स्पेंड करना पड़ेगा. ठीक है, फिर से वो वेज बिल का आएगा सिनेरियो, बट देन उस पॉइंट ऑफ टाइम तक बार्सा का वेज बिल सब्सटेंशियल हो जाएगा. दे कैन मैनेज इट. तो यार वी विल टॉक अबाउट हालैंड लेटर ऑन, बट देन बार्सिलोना इज ऑल्सो वर्किंग अपॉन डील्स. अगर हालैंड की डील फेल होती है तो they are working on Rafael Leao, they also looking at Timo Werner, they have looked at Alvaro Morata as well. तो काफी सारे स्ट्राइकर्स हैं जिनके लिए बार्सिलोना स्टिल पॉइज्ड अगर यहाँ पे हालैंड की डील फेल होती है. तो लपोर्टा से पूछा गया अबाउट दिस हालैंड डील, ही सेड कि ही वोंट बी मेकिंग एनी ट्रांसफर्स जिससे कि बार्सिलोना का फाइनेंस प्रॉब्लम में आए. ही वोंट बी मेकिंग एनी साइनिंग दैट वुड डिसरप्ट द फ्लो ऑफ बार्सिलोना's प्रोग्रेशन. तो दैट इज ओनली वाइज यहाँ पे. बट व्हाट मेक्स मोर सेंस, you can tell me in the comments down below. Now, there's a bit of a rumor about Lewandowski. सबको पता है कि Leva is not signing his contract, not extending his contract, and he is wanting a move out. So how will Barcelona see this? This is opportunity. This is a very good opportunity for Barcelona to get a player. Leva still has got it. सच में Leva still has got it, and he can play for more than 2 years. Would it be wise for Barca to get Lewandowski on free? When you talk about why should Leva join Barca, he is wanting something different. He's wanting another expedition, another adventure. Barca could be that place. Barca now has got that project building with the youngsters as well.
तो तुम देख सकते हो why not anybody would want to be at Barca, why not even Erling Haaland, why not even Lewandowski. So I don't see a point in this that would be a problem, but then it all depends on किसको आप साइन कर रहे हो. It depends Barca किसके लिए focused है. तो that is one thing that you can argue about. But talking about Mbappe, आपको पता है कि Mbappe is Madrid bound. कभी ना कभी he had to leave, and I think this is now the right time for Mbappe to make a move. Not saying इस वीडियो में PSG को मैं disrupt, whatever you want to call it, मैं नहीं करूँगा. I've done it before. Right now, the best move for Mbappe would be to go to Real Madrid because that is his dream. तो अगर अंबापे मैड्रिड आता है तो बार्सिलोना को एक स्टेटमेंट साइनिंग करनी होगी. दिस हैज टू बी, एंड हमेशा से ये दोनों क्लब्स ऐसे ही लड़ते आए हुए हैं. दे मेक अ साइनिंग, बार्सा विल मेक अ साइनिंग. सो वी हैव टू वेट एंड सी कि बार्सा किसको एक्चुअली अप्रोच करती है. तो ना फीजिबिलिटी ऑफ अर्लिंग हालैंड, आई वांट टू डिवेल्व इनटू दिस फॉर अ व्हाइल. फीजिबिलिटी क्या होगी अर्लिंग हालैंड की? वी विल सी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम बार्सा लीव दिस सीजन. ब्राइथवेट विल लीव, लूक डियोंग विल लीव, डिपाय मोस्ट प्रोबेबली विल लीव, हो सकता है डेम्बेले विल लीव. तो वी विल हैव मोर लाइक 4 प्लेयर्स लीविंग. इन सब की सेल से हमें पैसा मिलेगा, इन सब की वेज बिल कट होगी. वी विल हैव दैट फाइनेंशियल मॉडल टू फाइनेंस अर्लिंग हालैंड इवन. Will he fit at Barca? That's another question. I think that he won't have another problem to fit at Barca because Barca को तुम अभी खेलते देखते हो with the way they are utilizing Luke De Jong, with the way they are utilizing Aubameyang. मुझे जहाँ तक लगता है कि नंबर 9 वाला एक रोल जावी इंस्टिल कर रहा है इस टीम में. I'm happy with the way this team is developing, but then who would you have, मेरे भाई? If you'll ask me, I would want to save Lionel Messi from over there because Messi have saved Barcelona a lot of times, and now this is the time for Barcelona to save Lionel Messi. जैसे Manchester United stepped in and saved Cristiano Ronaldo, he wasn't feeling belonged at Juventus and he wanted a way back, and then यहाँ पे United stepped up and got their man, even though they had to spend a few money. But ठीक है, Barca can still try to do that. But it is really difficult यार. वहाँ पे Juventus थी, यहाँ पे नासर अल खलीफी की PSG है मेरे भाई. थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड. ये इतना आसान नहीं होता ट्रांसफर का सिस्टम. क्रिश्चियनसन की डील ऑलमोस्ट डन है. ही विल बी साइनिंग फॉर 3 years प्लस 2 years का कॉन्ट्रैक्ट होगा. फ्रैंक केसी भी बहुत क्लोज है. बट नाउ बार्सा इज ऑल्सो लुकिंग एट इनियाकी पेनिया. ही बी कमिंग बैक टू बार्सिलोना. विल ही बी द सेकंड चॉइस गोलकीपर. सो काफी सारी चीजें हैं. एक डिफेंस का भी एक इशू है, एक मिडफील्डर का भी एक इशू है. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी सॉर्टेड आउट. बट देन अगेन, व्हाट अबाउट नेमार, व्हाट अबाउट मेसी, व्हाट अबाउट अर्लिंग हालैंड भाई? नेमार, हालैंड, लेवांडोस्की से ज्यादा मैं लेओ मेसी को दोबारा से बार्सा पे देखना चाहूंगा. दैट डजंट मीन कि आई डू नॉट रिस्पेक्ट द अदर प्लेयर्स. आई जस्ट फील कि मेसी वाज बाउंड टू बी एट बार्सा. आई जस्ट होप कि बार्सा फिगर्स आउट अ वे जिसमें कि हम मेसी को वापस ला सकते हैं, एंड ही वुड फिट इन दिस सिस्टम लाइक ही हैज ऑलवेज डन भाई. दिस इज हिज होम. आई एक्सपेक्ट हिम टू बी एट बार्सा सून माय भाई. सो दैट्स दैट. Barca do have now got the financial capability that they can pull off the moves. I hope that they will only improve from here. So what do you think? What do you think? Do let me know. Do let me know in the comments down below. That's all for this video. I'll see you guys very soon. Until then, as always, Viscal Barca and peace out.